So hello everyone. Today we will discuss reasoning questions of SGVNL exam. That is of 3 years we are taking the reasoning question overall from 2023, 2019 and 2020. Okay. Let's start with our first question paper that consists of 10 reasoning questions. So you see here the first question is, in the problem, out of 4 figures marked 1, 2, 3, 4, there are similar in certain manner. However, one figure is not like the other. Choose which one is not like the other. Now here you clearly see that this is also the diameter. It's going from the center of the circle. It is also going from the center of the circle. This is also going from the center of the circle, but this one not going to the सेंटर ऑफ द सर्कल. ये सेंटर में से नहीं जा रही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? 2 ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देयर आर सम बेंचेस इन अ क्लासरूम. ओके, इफ 4 स्टूडेंट्स सिट ऑन ईच बेंच देन 3 बेंचेस आर अनऑक्युपाइड. अगर 4 स्टूडेंट्स बेंचेस पे बैठते हैं तो हाउ मेनी बेंचेस आर लेफ्ट ऑक्युपाइड? दैट इज 3 benches. Similarly, however, if 3 students sit on each benches, 3 students are left standing. So इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं let total benches is equal to x. Let assume that total benches is equal to x. Now what we have to do? We know that in first condition 4 students sit on each bench, then 3 benches will be the extra. So what we have to do? We know that 4 students sit on each bench, then 3 benches are extra. Now can we do this total number of student? In first case we know that 4x minus 3, this is the total number of student. Means if we subtract 3 benches from the total benches, then we multiply 4 student sit on each benches, then how many we get? How many student we get? We get the total number of student. Similarly, if 3 students sit on each bench, if 3 students sit on each bench means 3 students sit on each bench, then there are 3 students left standing. So this is also the total number of student, and this is also the total number of students. Clear? So just solve this. We get 4x minus 12 is equal to 3x plus 3. We get 4x minus 3x is equal to 3 plus 12, that is 15. X is equal to 15. That is the total number of benches in the class is 15. Now we have to find कि कितने बच्चे थे. So what we do? We put in this equation 4x minus 3. आप इसमें भी पुट कर सकते हो और इसमें भी. So because these are the total number of student, so what we get? 15 minus 3, that is 12, that is 48. So 48 will be the answer. Okay, let's move to the next question. Now in next question you see that which choose the similar pair of the following. हमें similar pair choose करना है इन सब का. So what we have to do? देखिए क्या हो रहा है यहां पे. If we get 8 plus 2, we get 8 plus 2, then we get 10, and 10 का square is equal to 100. Similarly 12 plus 2, that is 14. 14 का square we get 196, that is first is correct. But when we get 10 plus 2 12, 12 का square is equal to 144, this is wrong. Similarly 9 plus 2 11, 11 का square 121. Similarly 16 plus 2 18, that is also wrong. So our option is A is correct. So this is the simple trick to solve this question. Now move to the next question, that is triangle. Find the number of triangle. तो इसमें what we have to do, हम एक एक करके लेंगे. Firstly I am taking the this one.
दिस वन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ट्रायंगल्स हो, तो हमें पार्ट्स देख लेने 1 2 और दोनों को ऐड कर देना है। तो हाउ मच ट्रायंगल्स आर देयर? 3। सिमिलरली मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा? एक ये वाला, दैट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट 1 2, देन वी ऐड दिस, वी व्हाट वी गेट, वी ऑल्सो गेट 3। ओके, नाउ अब क्या करना है? नाउ हमारे पास एक और ट्रायंगल है, दैट इज आई एम टेकिंग चेंजिंग द कलर ऑफ मार्कर, ये वाला, दैट इज ऑल्सो ऐसा ट्रायंगल 1 2, दैट इज 1 + 2 अगेन 3, वी गेट 3 मोर। ओके, नाउ अब और वी ऑल्सो नो दैट this triangle is also this type of triangle. Okay, so what we get here 1 2, but we only take 2 of this triangle. क्यों? क्योंकि हमने एक पहले ही इस वाले ट्रायंगल में ले लिया है, इस वाले में। so हमारे पास हो गए 11। नाउ अब और कौन सा ट्रायंगल रह गया? ये वाला 12। ओके, और कौन सा रह गया? 13 एंड 14। सो हाउ मेनी ट्रायंगल्स वी गेट हेयर? दैट इज 14। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो ट्रायंगल्स को। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आया है दैट इज ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से एक आध क्वेश्चन तो जरूर आना है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो, कुमार कहता है दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर। कुमार क्या कह रहा है? ये जो गर्ल है, आई एम टेकिंग गर्ल एज सर्कल एंड बॉयज एंड स्क्वायर। ओके, ये जो गर्ल है, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, यानी कुमार की जो ग्रैंड मदर है, दैट इज द ग्रैंड मदर ऑफ कुमार। ठीक है, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। मेरी ग्रैंडसन लिख दिया है मैंने, मेरी क्या कह रहा है? दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। जो मेरे मदर है, ठीक है, जो कुमार की मदर है, ठीक है, कुमार की मदर है, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माय मदर। उसके जो ग्रैंडसन है, कुमार की जो मदर का ग्रैंडसन है, उसकी वाइफ है। मतलब कुमार की जो मदर है, उसका ग्रैंडसन हो गया ये, ओके, और उसकी वाइफ हो गई ये गर्ल, और ये कुमार की क्या है? मदर, और उनकी मदर की ग्रैंडसन की वाइफ है। तो बेसिकली कुमार इसके पिताजी होंगे, यस और नो? किसके? ग्रैंडसन के। सो ही विल बी फादर। एंड हाउ इज कुमार रिलेटेड टू द गर्ल? और गर्ल के क्या लगेंगे वो? दैट इज क्या लगेंगे? ससुर, दैट इज फादर इन लॉ। सो सिंपल इसको हिंदी करके हमने देखना है। क्या कह रहा है कुमार? क्या कह रहा है? ये जो लड़की है, ये वाइफ है पोते की, मेरे मदर के पोते की वाइफ है। क्या कह रहा है कुमार? ये जो लड़की है मेरे, क्या कह रहा है? इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, मेरी मदर के पोते की वाइफ है ये जो लड़की है। तो क्या लगी उसकी? बेसिकली कुमार क्या लगा उसका? फादर इन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट। यहां पे 4 नंबर्स दिए हुए हैं, तो दे आर अलाइक इन सम मैनर वाइल 4th वन इज डिफरेंट। सो अब हम यहां पे क्या करें कि हमें पता चले कि चौथा जो नंबर है वो डिफरेंट है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें 64, यानी कि अगर हम करें 4 4 4, ठीक है, और यहां पे मैं करूं 3 3 3, ये तो 27 हो गया, गलत। ठीक है, और ये 10 × 10 × 10 1000, 10,000, 5 × 5 × 5, अगेन गलत। ठीक है,
So option 1 is correct. Next question is a cube is colored green on all faces. It cut into 27 faces. अब एक क्यूब है जिसको हमने कट किया हुआ है कितने फेसेस में? हाउ मच फेसेस? 27 smaller cubes of equal size. How many cubes are not colored on any face? Now जब भी हमारे पास क्यूब का क्वेश्चन आए तो व्हाट वी हैव टू डू, वी नो दैट नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, कितनी क्यूब से हमने कट किया है, दैट इज n, और n का क्यूब इज इक्वल टू क्या आया हुआ है? 27. वो क्या दिया हुआ है कि 27 स्मॉलर क्यूब्स हैं, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी गेट n इज इक्वल टू 3. ठीक है, यानी इतने कट लगे हैं. और जब भी वो पूछे कि जीरो फेस कलर्ड, एक भी फेस पे रंग नहीं आया, जीरो फेस कलर्ड, जब भी ऐसा हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर जीरो n-2 की क्यूब. फॉर 1 भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर 2 भी, एंड फॉर 3 फेस भी. जीरो फेस कलर्ड, 1 फेस कलर्ड, 2 फेस कलर्ड, एंड हाउ मच? 3 फेस कलर्ड. So 3 face colored is always fixed, that are always answer will be 8. But for the what we can say, but for the 2 and 1, for 2 that is formula is n-2 into 12, and for 1 n-2 into 6. So this was the formula basically for the, basically यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, n-2 का स्क्वायर into 6. These are the formula to find out the how many face of a cube are colored. So for the 0 you see here n-2 का क्यूब, for 1 n-2 का होल स्क्वायर into 6, and for 2 n-2 into 12. This was the very important formula for the cube. Now अब वो क्या कह रहा है? How many cubes are not colored on any face? मतलब 0 पूछ रहा है कि एक भी colored ना हो. So हमें n की वैल्यू पता है, n कितना है? 3. What we get? 1 की क्यूब is equal to 1. So आंसर क्या हो जाएगा? 1. So that will be the answer. अगर वो कहता है कि टू फेस आर कलर्ड ऑफ ए क्यूब, तो कितनी ऐसी क्यूब होंगी जिनका 2 फेस जो होगा वो कलर्ड होगा? सो हमें क्या करना था? ये वाला यूज कर लेना था, 2 - 2 into 12. सॉरी 3 आएगा ना, n इज इक्वल टू 3 है. 3 - 2 into 12, दैट इज हाउ मच? वी हैव 12. लेकिन अगर वो पूछता 3 कलर्ड फेसेस ऑफ ईच क्यूब, वो कितनी होंगी? 8. वो फिक्स रहेगा हमेशा हर केस में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर सीरीज से आया हुआ है. ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जस्ट देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है. 3 यहां पे कितना आ रहा है? 5 यहां पे कितना आ रहा है? 7 यहां पे कितना आ रहा है? अब ज्यादातर बच्चे क्या सोचेंगे? 9. नहीं, बट यहां पे देखोगे आप 11 आ रहा है, यानी प्राइम नंबर का डिफरेंस लेके चल रहे हैं. यहां पे कितना आ रहा है? 13 आएगा, बिल्कुल आ रहा है. फिर 17, फिर 19, एंड लास्ट में 23. सो 77 + 23 100. सो आवर आंसर विल बी बी. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोडिंग डिकोडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रीजनिंग. टीचर इज कोडेड एज UDBBIDS, देन व्हाट इज द कोड ऑफ प्रोफेसर? नाउ हमें पता करना है कि टीचर का कोड कैसे आया, UDDBIS. तो हम इसका पता करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हर एक का नंबरिंग पता होना चाहिए. मैं टीचर लिख रहा हूं. T कितना होता है? 20. E कितना होता है? 5. A कितना होता है? 1. C कितना होता है? 3. H कितना होता है? 8. 5 E R 18. इससे क्या बना हुआ है? दैट इज UDBBIS. सो U कितना होता है? 21. D कितना होता है? 4. B कितना होता है? 2. B 2. I 9. S 19. अब कंपेयर करिए, T से क्या बना हुआ है? U, यानी कितना? 20 + 1, 1 ऐड हुआ, 20 से 21 बन गया, 1 ऐड हुआ. ठीक है. सिमिलरली E से क्या बन रहा है? D. अब E कितना था? 5. कितना बन रहा है? 4, यानी 1 माइनस हुआ, यानी थोड़ा सा मुझे आइडिया लग रहा है +1 हो रहा है, -1 हो रहा है. ठीक है, ये सीक्वेंस चल रहा है. आपको सीक्वेंस ही पकड़ना होता है कोडिंग डिकोडिंग में. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, अगेन कितना ऐड हो रहा है? +1. सो मुझे समझ आ गया सीक्वेंस, +1 -1 +1 -1 -1. यहाँ पे क्या हो रहा होगा? -1.
यहाँ पे क्या हो रहा होगा +1 और यहाँ पे क्या हो रहा है -1, ठीक है, सॉरी +1, सॉरी, ठीक है, +1 एंड लास्ट में -1। सो ये सीक्वेंस चल रहा है +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो सिमिलरली हमें प्रोफेसर का करना है पता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर के स्पेलिंग लिख लेते हैं, ठीक है, किस तरह से दिए हुए हैं उन्होंने। P कितना होता है 16, R 18, O 15, F 6, E 5, S 19, S 19, O 15 एंड R 18। सो व्हाट विल वी गेट नाउ, देखिए अब क्या हमें मिल सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड +1 दैट इज 17, 17 इज इक्वल टू क्यू तो सभी ऑप्शंस में है। फिर एक माइनस करना है, व्हाट वी गेट 17, अगेन 2 क्यू वाला क्वेश्चन, तो ये तो डिसमिस हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब +1 करना है, 15 + 1 16, 16 मीन्स 16 का मतलब P, तीनों में P है। फिर -1 मतलब 5, 5 का मतलब E, दैट इज ये भी खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, ये बचा हुआ है और ये। फिर देखते हैं +1 करना है, यानी F दोनों में है, 6 हो गया। फिर -1 18, R दोनों में है, नहीं है, ये वाला C ऑप्शन हो गया। C विल बी अवर ऑप्शन, +1 -1 +1 -1, दैट विल बी द साइकिल। Choose the alternative which mostly closely resemble the mirror image। मिरर इमेज का खास बात क्या होती है, देखिए जैसे कि मिरर इमेज में क्या होता है, ये आपका मिरर है, आपने सिर्फ जो भी चीज है आपकी उसको ऐसे पलट देना है, जस्ट पलट देना उसे। मान लीजिए मैं बात करूं L की, तो L को जब मैं पलटूंगा मिरर इमेज में ये हो जाएगा। सो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज में ऐसे हो जाता है उल्टा, जैसे अगर इसका L का वाटर इमेज में निकालता तो क्या आता, ये, दैट विल बी द वाटर इमेज एंड दैट विल बी द मिरर इमेज। तो ये सीक्वेंस हमें ध्यान रखना है। तो हमें पता है डाउन का अगर मैं मिरर इमेज निकालूं तो मैंने लिख दिया ऐसे बड़ा बड़ा डाउन। सो मिरर इमेज में जब मैं N को पलटूंगा तो कुछ N ऐसे दिखेगा। अब इसी से ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, कहां पे दिख रहा है पहला N, ये तो एलिमिनेट हो गया, और यहां पे ये होना चाहिए था इसका, ठीक है, इसको गड़बड़ हो गई है, इसको ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। W तो एज इट इज रह जाएगा, O भी एज इट इज। जब D देखेंगे तो D कैसा होगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो दैट विल बी द बेसिकली द आंसर। सो हम अपने आप से ही देख लेंगे, इसमें गड़बड़ हुई है ऑप्शंस में। सो दैट विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट ये कुछ हिंदी में आगे क्वेश्चंस। प्रकाश का परिचय देते हुए रामू ने कहा, इसका इंग्लिश वर्जन पता नहीं किधर गया, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन प्रकाश के पिता मेरे पिता के बेटे हैं। प्रकाश, ये हमने ले लिया प्रकाश, ये भी ब्लड रिलेशन से आया हुआ है। प्रकाश ले लिया हमने। प्रकाश क्या कह रहा है, प्रकाश का परिचय देते हुए रामू ने कहा, रामू कह रहा है बेसिकली, रामू, ये हो गया रामू। इसका परिचय देते हुए, इसके बारे में बात करते हुए रामू क्या कह रहा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन प्रकाश के पिता मेरे पिता के बेटे हैं। प्रकाश के जो पिता है ना, वो रामू के पिता के बेटे हैं, ठीक है। सो रामू के जो पिता के पिता हैं वो प्रकाश के पिता के जो बेटे हैं वो प्रकाश के पिता हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, बेसिकली साफ दिख रहा है, यानी प्रकाश जो है ये रामू की ही बात हो रही है यहां पे। रामू जो क्या लगा, उसका पिता, ठीक है, क्योंकि उसका कोई भी, मेरा कोई भी भाई बहन नहीं है। रामू अपने बारे में बात बता रहा है यहां पे, ठीक है। तो साफ पता चल रहा है कि रामू क्या होगा, पिता होगा, दैट इज सी विल बी द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पे 3/4 कर लेना, थोड़ी इसमें गड़बड़ भी लग रही है मुझे। 3/4, एक कक्षा में 18 लड़के हैं जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। यदि ये लड़कों की संख्या 3/4 है और कक्षा में लड़कों की कुल संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का 2/3 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। जो 18 है, लेट टोटल बॉयज X मान लू मैं, कह रहा है
एक कक्षा में 18 लड़के हैं जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, यदि ये लड़कों की संख्या का 3/4 है, इफ 18 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द टोटल बॉयज, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। एंड सेकंड, और कक्षा में लड़कों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या का 2/3 है, और जो कक्षा में लड़कों की जो कुल संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या कितना है, लेट टोटल स्टूडेंट इन क्लास y, टोटल स्टूडेंट हमने कितने मान लिए y, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या हमें पता करनी है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स तो y हो गए, यहां तक बात समझ आ रही है। टोटल स्टूडेंट्स हमने y ले लिए और टोटल बॉयज हमने कितने ले लिए x। सो अगला पॉइंट क्या है, कक्षा में लड़कों की कुल संख्या क्या है, यहां से हम इसको निकाल लेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो 24 तो बॉयज आ गए, लेकिन अभी लड़कियों की कुल संख्या पता करनी है हमें। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कक्षा में लड़कों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या का 2/3 है। कक्षा में लड़कों की कुल संख्या यानी x इज द बॉयज, इज 2/3 ऑफ द विद्यार्थी, यानी विद्यार्थी कितने टोटल y। सो x कितना आया हमारे पास, दैट इज 24 इज इक्वल टू 2/3 इज इंटू y। सो 24 इंटू 3/2 दैट इज 36 इज इक्वल टू y। यानी टोटल जो स्टूडेंट्स हैं कक्षा में वो 36 है, जिनमें से बॉयज मेरे पास कितने आए हैं 24, तो बचे हुए क्या रहे होंगे, 36 में से 24 माइनस कर दूं, दैट इज 12, दैट आर द नंबर ऑफ गर्ल्स। सो हमारा आंसर क्या हो गया ए। सो 12 विल बी द गर्ल्स। यहां तक क्लियर हो रहा है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फिगर में पता करना है कि सीक्वेंस चलना चाहिए कौन सी अगली की, तो मुझे साफ पता चल रहा है 4 डंडे, 3 डंडे, 2 डंडे, अगली पिक्चर में 1 डंडा आएगा। अब एक वाले तो 3 है, फिर कह रहा है देखो 3 कोने हैं इसमें 4 कोने, इसमें 5 कोने, तो 6 कोने किसमें है, डी में। 1 2 3 4 5 6, तो आंसर विल बी द डी। ओके, तो इस तरह से आपने थोड़ा आइडिया लगाना है कि कौन सा आंसर हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि इसमें से अलग हमने ढूंढना है ना, हमने अलग ढूंढना है, तो कैसे हम इसको ढूंढ सकते हैं, ऑड वन आउट हमने देखना है। तो अगर इसमें हम ध्यान से देखें, यहां पे 15 का हो रहा है, 15 और ये 16 है, 14 ये 15 है, ठीक है, 14 यानी 15, और ये 12 पर ये भी 12, गलत हो गया। तो इस तरह से यहीं पे क्वेश्चन हमारा खत्म हो सकता है। 15 का स्क्वायर और अगला 16, 14 का स्क्वायर अगला 15, ठीक है, तो दैट विल बी द आंसर। A figure is given followed by 4 alternatives 1 2 3 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट, चूज विच मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज। अगेन मिरर इमेज, अब इसका मैं मिरर इमेज निकालूं, मैं ऑप्शन पे ही नहीं जाता, सीधा मैं मिरर इमेज ऐसे निकाल देता हूं। बॉक्स तो रहेगा ही रहेगा, मैं ऐसे पलटूंगा, जब मैं ऐसे पलटूंगा ये कुछ ऐसा होगा और ये कुछ ऐसा होगा और ये बॉक्स होगा। तो ये वाली इमेज लगभग देख लो कहां पे दिख रही है, ये रही, डी इज द ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट नंबर सीरीज, देखो नंबर सीरीज से भी हर बार क्वेश्चन आ रहा है। सो क्या होगा इसका आंसर, 2 6। अब यहां पे मैं देखूं कितना ऐड हो रहा है, 2, यहां पे देखूं 4, यहां पे 6, यहां पे 8, यहां पे 10, यहां पे 12, यहां पे 14, यहां पे 16, यहां पे 18 हो जाएंगे। 72 प्लस 18 दैट इज 90 विल बी द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी सिंपल। अब फिर इसमें ऑड वन आउट देखिए, ऑड वन आउट पे थोड़ी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे कौन सा ऑड है, देखिए
इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, मुझे पता है 13 और ये 13 इंटू 13, ये 19 और 19 इंटू 13 करेंगे तब भी 247 आएगा। ये 17 और 17 इंटू 13 करेंगे तो क्या आएगा 221, बट ये वाला गलत है। तो ओड कौन सा हो गया, क्योंकि 15 इंटू 13 करेंगे तो 215 नहीं आएगा। ठीक है, सो दैट विल बी द ओड वन। सो हमारा ये क्वेश्चन, इन वाले क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। स्क्वायर्स का पता होना चाहिए आपको कम से कम 30 तक के। ठीक है, उससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन अगेन कोडिंग डिकोडिंग भी कह सकते हो आप इसको। b को 3 कहा इसने, g को 8 कहा। ठीक है, मुझे पता है अगर मैं जनरली अल्फाबेट्स में जाऊं b इज इक्वल टू 2 होता है, लेकिन इसने +1 कर दिया, और g इज इक्वल टू 7 होता है पर +1 कर दिया। तो बस वही चीज हमने यूज करनी है। लैंग्वेज को मैं लिख रहा हूं, l कितना होता है 12, a कितना होता है 1, n कितना होता है 14, g कितना होता है 7, u कितना होता है 22, 21। ओके, UA1 G7 E5। सो 1 1 ऐड कर देना। ये 13 हो गया, ये 2 हो गया, ये 15 हो गया, ये 8 हो गया, ये 22 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है 13 किसको कहते हैं। अच्छा, टोटल करना है इसका, टोटल कर देना है। 8 और 6 15 और 15 30, 30 38 प्लस 22 16, 76 विल बी द आंसर। ठीक है, अगर वो सीधा पूछता कि अब क्या लैंग्वेज, अब क्या बनेगा इसका लैंग्वेज को और आगे क्या बना सकते हैं, अगर मैं उसको ऐड कर दूंगा तब वो भी बन सकता है बेसिकली। ठीक है, डिफरेंट कौन सी है इसमें। अब देखिए, पहली में अगर मैं ध्यान से देखूं, नीचे एरो, फिर ऊपर, फिर दाएं, फिर इधर होना चाहिए था ना। तो बेसिकली कौन सी गलत है, दिस वन। सो यहीं से ही पता चल रहा है कि दिस वन इज रॉन्ग। ठीक है, इसमें एरो इन्होंने अंदर को दे दी इधर, जबकि बाहर को होनी चाहिए थी। ठीक है, मिनिमम नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, लो इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो आंसर विल बी द 40। ठीक है, तो इस तरह से आप डायग्राम से कर सकते हो। इंट्रोड्यूसिंग दीपिका, दीपिका को इंट्रोड्यूस करते हुए मुराली क्या कहता है। ये है दीपिका, और इसको इंट्रोड्यूस करते हुए कौन कह रहा है, मुराली। मुराली क्या कह रहा है, हर फादर, यानी इसके जो पिता हैं, फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, जो मेरे पिता हैं उसके इकलौते बेटे हैं। यानी मुराली के जो पिता हैं, तो यानी ये मुराली खुद की बात कर रहा है। ये फादर जो हुआ है मुराली हुआ, क्योंकि वो कह रहा है इकलौते बेटे हैं। इकलौता बेटा यानी वो खुद ही हुआ और कोई है ही नहीं उसका भाई बहन। तो बेसिकली मुराली क्या लगा दीपिका क्या लगी, बेसिकली डॉटर लगी। अगर मुराली पूछता तो वो क्या लगा, फादर लगा। ठीक है, सो दैट विल बी द आंसर। अब ये देखिए क्यूब का क्वेश्चन आ गया, यानी कि यहां पे n इज इक्वल टू 4 हो गया, और 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64, क्योंकि 1/4 साइज। क्यूब को क्या किया, 1/4 साइज में काट दिया, 1 2 3, ये इस तरह से 4 क्यूब्स बनती गई। ठीक है, तो टोटल क्यूब्स कितनी बनेगी, टोटल नंबर्स ऑफ क्यूब 64 बनेगी उसमें से। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, ओनली वन साइड पेंटेड, और मैंने वन साइड पेंटेड का फॉर्मूला क्या बताया था, मुझे पता है n-2 का स्क्वायर इंटू 6, वन साइड पेंटेड। सो हेयर n इज इक्वल टू 4 इंटू 6, दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 6, 4 इंटू 6 दैट इज 24। सो आवर आंसर विल बी 24। तो आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, बड़ा
सिंपल है यहाँ पे, लेकिन खास बात इसने ये कर दी, इन्होंने कहा 1/4, दैट मीन्स 1/4 यानी 4 हिस्से कर रहे हैं हर एक फेस पे उसके, तो यानी n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 का क्यूब, दैट इज टोटल क्यूब कितनी बनेगी उस बड़ी क्यूब से, 64। ओके, अगेन एक और क्वेश्चन आ गया, 258 और अदर कौन सा है, देखिए ध्यान से। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अगेन इसको भी सॉल्व करना है ना। अब 258 यानी 258 किसी का स्क्वायर होता है 258, देखिए होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। अब अगर मैं ध्यान से देखूं 256 किसी का होता है, जस्ट अ मिनट, हाँ जी एक मिनट, 258 रेशियो 16, 326 रेशियो क्वेश्चन मार्क। सो इस क्वेश्चन में अब आपने बताना है कि क्या रहा होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं 324 रहा होगा 18 इंटू 18 का, और 256 किसका रहता है, बेसिकली ये 18 हो गया तो ये हो गया 16 है ना, 16 इंटू 16 256, ठीक है, और प्लस 2 किया हुआ है, देखो क्या पैटर्न चल रहा है, 16 इंटू 16 256 और प्लस 2 258। सिमिलरली 18 इंटू 18 324 प्लस 2 326। सो ये पैटर्न चल रहा है इसमें। सो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज अगेन नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ है 0, 7, 26। अब वही पैटर्न अगर मैं देखूं 7 प्लस हो रहा है, फिर कितना ऐड हो रहा है 19, तो मुझे साफ पता चल रहा है तो पैटर्न नहीं बन पा रहा। अब दूसरा पैटर्न सोचता हूं मैं, देखो अगर 1 का क्यूब -1 कर दूं तो 0, 2 का क्यूब -1 कर दूं 7, 3 का क्यूब -1 कर दूं 26, 4 का क्यूब -1 कर दूं 63। अब मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे पता है 64 होता है, 125 होता है, 216 होता है, तो इस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं। तो अगला किसका होगा, 5 का क्यूब -1 124 सॉरी, 6 का क्यूब -1 अगला आ गया, अगला जो होगा 7 का क्यूब -1 होगा, सो दैट मीन्स 342, दैट इज 343 होता है, 343 -1 दैट इज 342। क्लियर। अगेन ब्लड रिलेशन, ये तो ब्लड रिलेशन का नहीं है, बेसिकली ये तो किस चीज का है, प्रेजेंट एज से रिलेटेड है, जो कि इन्होंने कहां पे डाल दिया, बेसिकली रीजनिंग में डाल दिया। आई वॉज ऑफ योर प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू x, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी, आई वॉज योर प्रेजेंट एज व्हेन यू बोर्न, जब भी बोर्न हुई होगी वो, सो प्रेजेंट एज ऑफ फादर विल बी दिस वन, ओके 62 सॉरी। सो is 62 age today, that this will be the present age of daughter and this will be the present age of father. Okay, if I subtract 62 minus x, that will be equal to the present age of daughter. So how old his daughter 5 years ago? So what we have to do, 62 minus x is equal to x, so 62 is equal to 2x, x is equal to 31, that will be the age of present age of the daughter. लेकिन 5 साल पहले क्या एज थी, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट -5, वी गेट 27, दैट विल बी द आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द अबव। देखिए इसमें मैं डायरेक्ट बता देता हूं, ठीक है। दो तरह के इसके स्टार के क्वेश्चन बनते हैं, कि ये वाला स्टार बन जाता है और एक ये वाला। जब भी एक तो ये बना हुआ है और ये वाला कैसे बनाया हुआ है, ऐसे, जब भी इस वाले का होगा तो इसका ध्यान रखना आंसर 10 और इसका 8, ठीक है। सो ये वाला बना हुआ है तो अब आंसर हो जाएगा 10। वैसे काउंट करोगे तब भी 10 बनेगा, 1 2 3 4 5, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो इस तरह से अगर आप काउंट करोगे तब भी कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। तो इसका सिंपली ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, इस वाले का 10, इस वाले का 8,
1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो इस तरह से आप इन दोनों क्वेश्चंस का ध्यान रख सकते हो। इसमें तो साफ पता चल रहा है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 15 का, ये 13 का, ये किसी का नहीं है, तो डी विल बी द आंसर। ठीक है, तो ओड वन आउट हमने कर दिया इसमें से। नेक्स्ट, फिजिक्स को ये कोडिंग डिकोडिंग से आ गया। ये साफ देखिए, मुझे यहां से देखने में ही लग रहा है इसको जंबल किया हुआ है, यानी कि फिजिक्स को कैसे जंबल किया हुआ है इसने, YHPSSCI, P यहाँ पे, Y यहाँ पे, H इज इट इज, ये एज इट इज, I यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यानी क्रॉस मल्टीप्लाई वन सेम एज इट इज। ओके, सो सिमिलरली हम साइंस का भी जब करेंगे, साइंस का हम करेंगे तो व्हाट विल बी गेट, ये एज इट इज, ये सो ICSEECN, ICSEECN, so C will be the answer. Next question is, कौन सा डिफरेंट है, डिफरेंट देखिए कौन सा है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, साफ पता चल रहा है ये गड़बड़ हो है इसमें, सो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए इसमें ये ठीक तरह से प्लेस नहीं था, इसको ऊपर कर दिया, सो इसमें भी क्या होगा, ठीक तरह से प्लेस नहीं होगा, ये भी एल बी, सो एल नीचे चला जाएगा, दैट इज ऑप्शन विल बी डी। सो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। सो दीज आर 3 क्वेश्चन वी टेकिंग रैंडमली। ओके, टोटल ही हमने पेपर देख लिया, 10 रीजनिंग के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं। ठीक है, बाकी और क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो ईयर्स में प्रीवियस ईयर में आए हैं। सो ओवरऑल आप देख रहे हो, ब्लड एंड रिलेशन से आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ठीक है, डाइज वाला भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, और बेसिकली हमें सीरीज वाला भी आ रहा है, एक वो आ रहा है स्क्वायर में पता करना हमने। ठीक है, तो इस तरह के सभी, और मिरर इमेज आ रहा है। ठीक है, और काउंटिंग ऑफ फिगर आ रहा है। तो ये 5-7 टॉपिक से बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो थैंक यू। अब